ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਬ ਤੇ ਜਬਾਏ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਆਕਾਸ਼ਾ, ਐਸੀ ਰਹਿਤ ਰਹੋ ਹਰ ਪਾਸਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਤੂੰ ਰਹਿ, ਔਰ ਇਹ ਰਹਿਣੀ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਿਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਸੀ ਰਹਿਤ ਰਹੋ ਹਰ ਪਾਸਾ। ਇਸ ਰਹਿਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਰਹਿਣੀ? ਅਬ ਤੇ ਜਬਾਏ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਆਕਾਸ਼ਾ। ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਅਬ ਪਾਣੀ, ਬਾਏ ਹਵਾ, ਤੇਜ ਅਗਨ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਆਕਾਸ਼। ਅਬ ਤੇ ਜਬਾਏ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਆਕਾਸ਼ਾ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਤੱਤ ਦਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ। ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਨਿਰਾ ਪਵਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਅੱਗ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਨਿਰਾ ਅੱਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਨਿਰਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਅਬ ਤੇ ਜਬਾਏ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਆਕਾਸ਼ਾ, ਐਸੀ ਰਹਿਤ ਰਹੋ ਹਰ ਪਾਸਾ। ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁਣ ਲਿਖੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਲਮਾਂ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਤਨ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਕੀ ਮੇਲ? ਪਲ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜਲ ਤੇ ਅਗਨੀ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਉ ਉਪਾਏ ਧਰੀ ਸਭ ਧਰਤੀ, ਜਲ ਅਗਨੀ ਕਾ ਬੰਦ ਕੀਆ। ਅੰਧਲੇ ਦੈ ਸਿਰ ਮੂੰਡ ਕਟਾਇਆ, ਰਾਵਣ ਮਾਰ ਕਿਆ ਵੱਡਾ ਭਇਆ। ਕਿਆ ਉਪਮਾ ਤੇਰੀ ਆਖੀ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਤੂੰ ਜਲ ਅਗਨੀ ਕਾ ਬੰਦ ਕੀਆ। ਅੱਗ ਤੇ ਜਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਬੜਾ ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵੈਸੇ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਸਤੋ ਅੰਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਧਰਮ ਵੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜੋ ਰਸ ਮਾਣਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪਵਨ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਜੋ ਰੂਪ ਹੈ, ਝਲਕ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਨ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਅਗਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਤਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗਰਜ਼ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੱਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਵੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਈ ਪ੍ਰਥਮ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗੁਣ ਲੈ। ਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੁਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਿਹਾ। ਪੌਣ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ, ਧਰਤ ਮਹਤ। ਇਹ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਮਾਂ ਹੈ। ਬਈ ਕਿਉਂ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਮਾਂ ਹੈ? ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਗਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਖਾਕ ਨੂਰ ਕਰਦਨ ਆਲਮ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਨੂਰ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਕ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਨੂਰੀ ਨੇ
ਅਸੀਂ ਖਾਕੀ ਹਾਂ। ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚਾ ਜਗਤ ਖਾਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਨੂਰੀ ਨੇ। ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਖਾਕੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਨੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਨੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਖਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਖਾਕ ਨੂਰ ਕਰਦਨ ਆਲਮ ਦੁਨੀਆਏ। ਤਿਲੰਗ ਮੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਮੁੱਚਾ ਜਗਤ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖਾਕ ਤੋਂ ਤੇ ਨੂਰ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ। ਖਾਕ ਨੂਰ ਕਰਦਨ ਆਲਮ ਦੁਨੀਆਏ। ਅਸਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤ ਆਬ ਪੈਦਾਏ ਖੁਦਾਏ ਬੰਦੇ ਚਸ਼ਮ ਦੀਦਨ ਫਨਾਏ। ਤੋ ਉਹ ਨੂਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਕੀ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਮੁਖਤਸਰ ਕਰੀਏ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਗੁਣ ਕੀ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਜਨਨੀ ਹੈ, ਹਰ ਜੀਵ ਦੀ ਜਨਨੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਹੈ, ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਹੈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮਾਸ ਦਾ ਲੋਥੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਦਾ ਲੋਥੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਬਿੰਦ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਖੂਨ ਸੀ, ਖੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖੁਰਾਕ ਸੀ, ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿੱਟੀ ਸੀ। ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਖੁਰਾਕ ਚਲੀ, ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਖੂਨ ਬਣਿਆ, ਖੂਨ ਤੋਂ ਬਿੰਦ ਬਣਿਆ, ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਮਾਸ ਦਾ ਲੋਥੜਾ ਬਣਿਆ, ਬੱਚਾ ਬਣਿਆ, ਜਵਾਨ ਬਣਿਆ, ਬੁੱਢਾ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ। ਕਬੀਰ ਧੂਲ ਸਕੇਲ ਕੇ ਪੁੜੀਆ ਬਾਂਧੀ ਦੇ, ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੋ ਪੇਖਨਾ ਅੰਤ ਖੇ ਕੀ ਖੇ। ਪਸਾਰਾ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ, ਉਤਪਤੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ? ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਇਹ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਮਾਂ। ਕੋਈ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਮਲ ਮੂਤਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮਾਂ ਔਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਔਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਧਰਤੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਜਗਤ ਦਾ ਗੰਧ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਪੈਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਕਿੱਥੇ? ਬੱਚਾ ਸੌਂ ਜਾਏ, ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਜਾਏ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੋਦ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਧਰਤੀ 'ਚ ਹੀ ਸਮਾ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਥਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਧਰਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਹੰਡਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਧਰਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਇਹ ਤੇ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਮਾਂ ਹੈ ਇਹ ਧਰਤੀ। ਤੋ ਅਬ ਤੇ ਜਬਾਏ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਆਕਾਸ਼ਾ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਗੁਣ ਲੈ, ਕਿ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਿਗਰਾ, ਖਿਮਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਨਿਰਮਾਣਤਾ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗਾਲਬਨ ਰਾਮ ਕੱਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿਆਲ ਦੇਵ ਗੋਬਿੰਦ ਮਾਧੋ, ਸੁਨ ਸੰਤ ਨਾ ਕੀ ਰੀਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਸੁਣ, ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਉ ਨਿਤ ਨੀਤ, ਦਿਆਲ ਦੇਵ ਗੋਬਿੰਦ ਮਾਧੋ, ਸੁਨ ਸੰਤ ਨਾ ਕੀ ਰੀਤ। ਬਈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰੀਤੀ ਮੈਥੋਂ ਸੁਣ। ਕੀ ਰੀਤ ਹੈ? ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤੀਖਣ ਕਾਟ ਡਾਰਿਓ, ਮਨ ਨ ਕੀਨੋ ਰੋਸ, ਕਾਜਵਾਂ ਕੋ ਲੈ ਸਵਾਰਿਓ, ਤਿਲ ਨ ਦੀਨੋ ਦੋਸ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਜਿਹਾ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,
और उस कटे हुए दरख्त दी बन गई बेड़ी नौका। जिसने कटिया सी अज उसने दरिया तो पार होना, तो चरण थले उगा बैसियो, शर्म न रहो शरीर, महासागर ने व्यापे खिने उतरियो तीर। हुण जिन्हें दरिया तो पार होना पहले पैर रखने सन, बेड़ी च उसने पैर रखे, बैठ गया बेड़ी विच। ये बेड़ी की है? कुछ दिन पहले इसने एक दरख्त कटिया सी, तो किसी कारीगर ने उसकी अज बेड़ी बनाई है, तो जिसने कटिया है उन्होंने भी ये दरख्त पार पिया करता है। जिन्हें कटिया उन्होंने भी ये लकड़ किनारे ते लांदी पई है। संत दा जिगरा इतना महान है, जो कट दे, जो टुकड़े टुकड़े कर दे, जो बंद बंद भी कट दे, रसना तो उस वास्ते भी सराप नहीं बई उसकी कुल तबाह होवे, बर्बाद होवे, इस तरह का बचन नहीं। बड़ा जिगर है। चंदन अगर कपूर लेपन तिस संगे नहीं प्रीत, बिष्टा मूत्र खोद तिल तिल मन न मनी विपरीत। साहब कहते जिहड़ी जमीन है इहदे ते चंदन का लेप कर दईए, होर फुल फल इनू धरती नू भेंट करिए, अतर सेंट छिड़क दईए, तो ये कोई हंकार विच आके फुलदी नहीं। ते जे इहदे ते गंदगी सुट दईए तो कोई शराप नहीं देंदी, सदा एक रस। साहब कहते ने धरती वाला गुण भगत कोल होंदा है। चार बंदियां ने उपमा कर दी तां ठीक, जे चार बंदियां ने निंदा कर दी तां ठीक। किसी ने गंदगी सुट दी तां ठीक, किसी ने चंदन ते सेंट अतर छिड़क दिता ते ठीक। धरती सदा एक रस। जो अगर चंदन वाले नूं ते वर दे देवे ते बिष्टा सुट्टण वाले नूं श्राप दे देवे, वो बंदा व्यापारी है, संत नहीं है, भगत नहीं, तो व्यापारी है। बिष्टा मूत्र खोद तिल तिल, मन न मनी विपरीत। विपरीत उसने नहीं धारण की थी, बेसने गंदगी क्यों सुटी। तो कबीर कहते ने ऐ बंदे तेरे अंदर निर्माणता इतनी चाहिए, इतना विशाल जिगरा चाहिए, तो दूजे की गल इतनी सहन कर सके। मनुख दूजे की उपमा भी सहन नहीं कर सकता, दूजे की निंदा भी नहीं सहन कर सकता। चार बंदे उपमा करन लग पैण ते बंदा सोचता वाकई हुण मेरे जैसा कोई नहीं, बंदा भुल जाता। ते चार बंदे निंदा करन लग पैण ते सुकड़ जाता, औखा हो जाता। एक ही हो गया। तो ये जिहड़ी अवस्था है समझ लेना चाहिए, इसने धरती तो कोई गल सीखी नहीं। धरती सदा एक रस है। कबीर कहते ने धरती का यह गुण अपना ले, और फिर तो पानी की पवित्रता ले। पानी अगर ना होवे तो जगत की गंदगी धोनी बड़ी औखी गल है, बहुत औखी गल है। तो साहब कहते निरा तो मिट्टी तो थोड़ी बना है, पानी तो भी बना। तो तेरे विच पवित्रता चाहिए है। पवित्रता तेरे बोलां च, पवित्रता तेरे किरदार विच, पवित्रता तेरे विचारां च। ये सफाई चाहिए, ये साफ सुथरापन चाहिए। इवें परमात्मा ने तैनू जल दे नाल नहीं बनाया, जिहड़ा पानी नाल बनाया है, इस तो कुछ काम भी ले, इस तो प्रेरणा भी ले। पर निरा पानी नहीं, तू हवा भी है। ते हवा दा कम की ये सदा गतिमान है, चलती है, रुकती नहीं, फुर्तीली है। ऐ मनुख तो आलसी ना बन, सदा फुर्तीला बन। भज दौड़, समुचा संसार दौड़ रहा है, ते जे ना दौड़िया ते रह जाएगा। साहब कहने दिन रव चले निस सस चले, तार का लख पलोए। ए दिन सूरज चल रहा है, जमीन चल रही है, ग्रह नक्षत्र सूरज चंद तारे सब चल रहे ने। ते ऐ बंदे इस चलती हुई जमीन के उत्ते जे तू टिकना है, रहना है, तो तेनू भी चलना ही पएगा। हाथ धर के नहीं बैठेगा, रह जाएगा, पछड़ जाएगा। साहब कहते नहीं, गतिमान हो, सब कुछ चल रहा है इत्थे।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟਿਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਰਸਤੇ ਨੇ ਅਲੱਗ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਿਹਚਲ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਟਿਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਹਚਲ ਕਿਹਾ, ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਿਹਚਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਹਚਲ ਹੋ ਜਾ, ਟਿਕ ਜਾ। ਤੇ ਜੋ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਭੱਜ, ਦੌੜ। ਭੱਜਣ ਦੌੜਨ ਦੀ ਜਾਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਟਿਕਣ ਦੀ ਜਾਚ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਭੱਜਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੌੜਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦੌੜਿਆਂ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਿਆਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਦੀ ਬਗੌਰ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਭੱਜ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਭੱਜਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭੱਜ ਦੌੜ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਰੱਬ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਪੁਰਖਾ ਚੌਖੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਧੁਨ ਆਲਾਪ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਨ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਚੱਲਣ ਨਾਲ, ਪਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਹਚਲ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਟਿਕਣ ਨਾਲ। ਤੋ ਟਿਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਨੁੱਖ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਤੀਲਾਪਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਲਸੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆਲਸੀ ਹੋਵੇਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੂੰ ਪਵਨ ਤੱਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ। ਆਕਾਸ਼ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਮਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਭਰੀ ਨਹੀਂ। ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਖੀ। ਜਦ ਬੰਦਾ ਸਮਾਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ ਦਾ ਗੁਣ ਉਸ ਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਬੰਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਬੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਬੰਦਾ ਫੁਰਤੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਲਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਿੰਦਰਾ, ਭੁੱਖ ਤੇ ਆਲਸ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਵਧਾਓ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਘਟਾਓ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਂਦ, ਭੁੱਖ ਤੇ ਆਲਸ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਤਨਾ ਚਾਹੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਚਾਹੇ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਰਾ, ਆਲਸ, ਭੁੱਖ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਓ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਘਟਾਉਂਦੇ ਜਾਓ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ 'ਚ। ਤੋ ਜਦ ਬੰਦਾ ਫੁਰਤੀਲਾ ਹੋ ਜਾਏ तो उसने पवन तत्व का गुण प्रगट कर लिया। जब बंदे की समान दृष्टि हो जाए तो समझ लो आकाश का गुण उस दे प्रगट हो गया। तेज अगन, अगन तो की प्रेरणा लेनी है। बंदा समान दृष्टि का भी हो जाए, बंदा पवित्र भी हो जाए, बंदा निर्माण भी हो जाए, बंदा फुर्तीला भी हो जाए, पर बंदे दे अंदर वीर रस ना होवे, जोश ना होवे, अगन तो जोश लेना तो ये सारे गुण रह नहीं सकते, बर्बाद हो जाएंगे, मिट जाएंगे। हिंदुस्तान विच ये गुण करीबन करीबन बोधियां, जैनियां, जोगियां कोल हैगे सन। अग वाला गुण नहीं सी, अग वाला। तो हिंदुस्तान गुलाम हो गया। और न समझना अज भी गुलाम नहीं। आजाद कौमां अपनी बोली के आसरे ते जींदियां ने, अपनी संस्कृति के आसरे ते जींदियां ने। मुर्दा बंदा उहदे कोल ना अपनी संस्कृति होवेगी ना अपनी बोली होवेगी। जिंदा कौम जिथे भी चली जाएगी अपनी संस्कृति मिटन नहीं देती। तो जो मुर्दा हो जाता है वो मिटे है। इस सिलसिले च मैं देखदा कि ठीक है सिख भावें बहुत अगे, बहुत अगे, बहुत अगे, हर पहलू च अगे है, पर मिटन दे च भी अगे है, ते बर्बाद होने दे च भी अगे है। इस संस्कृति नूं नेस तो नाबूद करन दे च भी अगे है।
कोई मनुख अपनी इतनी छेती ना अपनी सभ्यता छड्डदा है, ना अपनी बोली छड्डदा है, जितनी छेती सिख छड्ड दिंदा है। समुची दुनिया विच भ्रमण करो, चाइना तो निकले हुए चीनी लोग अपनी सभ्यता दे च ने, अपनी बोली दे च ने, अपने धर्म दे च ने। सिख कोल नहीं है। ये कहंदा मजबूरी है, कुछ भी मजबूरी नहीं। जे वो अपनी चीनी भाषा दुनिया दे जिंदा रख सकते हैं ते अपनी लिपि नूं भी जिंदा रख सकते हैं। इनू गुरमुखी विच लिखदियां भी शर्म आउंदी है, पंजाबी बोलदियां भी शर्म आउंदी है। इत्थों ही स्पष्ट होया मुर्दा है, मर चुके हैं, जिंदगी की कोई गल ही नहीं। अगन जोश भी चाहिए, वीर रस भी चाहिए, और ये जोश ठंडा पै जाए अग ही नहीं तो ऐसे लोगों को कहते हैं कि ठंडा पै गया। तो ठंडा कौन पै जाता? मुर्दा। मुर्दे विच गर्मी नहीं आती, ਉਹਦੇ पैर वेखे जाते हैं, ਉਹਦੇ हथ वेखे जाते, ठंडा पै गया। जो ठंडा पै गया मुर्दा, जिहदे च अगन वाला जोश ही नहीं, वो मरण तो पहले ही मर गए। इतनी मैं अर्ज करते हैं, मौत उसकी हो गई। हुण इसनूं जिवाणा बड़ी औखी गल है। मैं अक्सर अर्ज करता होना, सुते उन्हों तो जगा लोगे, मरे हुए नूं किस तरह जगाओगे? कई मर चुके हैं, बिल्कुल मुर्दा हो चुके हैं। कूकदे रहो, खपदे रहो, गल नहीं बनेगी। भगत कबीर कहते नहीं, इन्हां पंजां तत्तां दी कला तेरे विच होनी चाहिए। पिछले दिन हिंदुस्तान विच बड़ा रोला एक पिया, जिसका जवाब मैनूं थां थां ते देना पिया। वो कहण लगे जिहड़ा परम संत हुंदा है, तोप तलवार बंदूक चलाना उसका काम नहीं हुंदा। ਉਹਦਾ ते कम है सिमरन करना, प्रभु नाल जुड़ना ते प्रभु नाल जोड़ना। और जो तोप तलवार की गल करे, तीर की गल करे, वो एक सिपाही हो सकता है, सूरमा हो सकता है, गुरु नहीं हो सकता, अवतार नहीं हो सकता। ये प्रचार इतने जोरां नाल से और तूफानी ढंग नाल, जिहदा अगर कौम मुकाबला ना करती तो खिमा करनी, साडे उपरों ये तूफान लंघ जाना सी। पर कौम दे कुछ जिंदा बंदे सन, जीवदे जागदे बंदे सन, वो अगे आ गए। हर शहर दे उन्हां दा यही प्रचार से, जो तीर की गल करे, तलवार की गल करे, बंदूक की गल करे, लड़ाई की गल करे, सूरमा है। गुरु थोड़ी है, संत थोड़ी है, भगत थोड़ी है। भगत किस तरह आउंदे ने, संत किस तरह आउंदे ने, उन्होंने व्याख्या थां थां ते करनी शुरू की। अगां की गल करन तो पहले एक निक्की जी गल मैं थोड़ी झोली च रखदे हाँ, किधर बाद च मैं भुल ना जावां कि असी पंजाब दे सिर्फ 5% ज्यादा, 5% इस तो ज्यादा नहीं। तो इस 5% नूं घटाउण की कोशिश जारी है हर पासे, सिर्फ 5%। तो 5% करके उन्होंने खतरा प्रतीत होता भी 5% भी क्यों ज्यादा ने, ये 5% भी क्यों ज्यादा ने। तो उन्होंने 5% के उत्ते डोरे डाले जाते हैं, किसी को राधा स्वामी बनाने की, किसी को निरंकारी बनाने की, किसी के अगों गुरु हरगोबिंद साहब ते गुरु गोबिंद सिंह जी की निंदा करके भी चलो गुरु हो सकता है तो सिर्फ गुरु नानक हो सकता है, बाकी नहीं। इस तरह की गल करके और बड़े वड्डे पैमाने बड़े वड्डे पद्धर पे और देश विदेश के प्रचार होंदा है। बदकिस्मती है इस प्रचार का असी कोई बहुत वड्डे पद्धर पे विदेशों या देश के बाकी कोणियां जवाब नहीं दे रहे। तो जवाब की खाक देना सी ते आपस ही लड़े फिरते हैं। और जवाब की खाक देना है कि जब गुरु वाली वो गल साडे कोल उंजी मिट्टी पई है, जिहड़ी गल वो मिटाना चाहते हैं तो मिट्टी पई उंजी पहले। जीवदे नूं ते गोली नाल मारांगे, मुर्दे नूं मारन की लोड़ ही की है, उन्होंने कट्टण की की लोड़ है, उन्होंने मारन की की लोड़ है। खैर मुख्तसर अर्ज करा, दिल्ली विच गुरुद्वारा सीसगंज साहब विच मैं गालबन जनवरी के महीने सारी हाज़री भरदा हुंदा। ये महीना उत्थे एक सज्जन अदकी उपर मेरे कमरे च आ गया, तो उसका चेहरा मैं देख लिया भी ये बहस के मूड च है, चर्चा के मूड च, तो लंबी चौड़ी गल करेगा जरूर, उसका चेहरा ही दस रहा सी। भावें मैं थकिया होया आया सी, पर उन्होंने कुछ अनमतियां जान के मैं कह दिता, अच्छा बई तू कह की विचारां कहनियां। कहंदा मेरा भी ये दृढ़ निश्चय है
कि जो तीर तलवार की गल करे असी उसनों सूरमा कह सकते हैं, जिमें महाराणा प्रताप होया, शिवाजी मरठा होया, असी उन्होंने सूरमा मनते हैं। चलो गुरु गोबिंद सिंह नूं भी मन लेंदे हैं, पर वो गुरु है, अवतार है, संत है, इस तरह की कोई गल पूरी नहीं उतरती। और ये प्रचार बड़े वड्डे पद्धर ते मैं इतनी अर्ज करते हैं, और उन्होंने पता है कि मार्शल स्पिरिट खत्म हो जाएगी अगर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की हस्ती सिख जगत तो कट देगी। वो उन्होंने पता है इस गल का उन्होंने बोध है। इस वास्ते गुरु नानक की तो निंदा नहीं करते, पर गुरु गोबिंद सिंह जी की करते हैं, दबी आवाज दे करते हैं। शायद आपको पता होवे कि बड़ौदा विच एक बहुत वड्डे इजलास दे महात्मा गांधी ने भी कहा सी कि गुरु गोबिंद सिंह भुल्ला होया रहबर। बड़ी चर्चा हुई सी उदों हिंदुस्तान दे, ये भुल्ला होया रहबर है। विचार की गल करदियां करदियां तलवार पकड़ ली, शांति की गल करदियां करदियां तोपां अगों ले आया, गले विच माला पहनानी सी, तलवारां ते किरपानां पवा छड़ियां। ये महात्मा गांधी दे बोल सन। खुशकिस्मती समझ लो कौम दी, उन्हां दिनां विच प्रिंसिपल गंगा सिंह जी जिंदा सन। वो सीधा ही चले गए। उन्हां दे आश्रम साबरमती आश्रम जो उन्होंने अहमदाबाद विच बनाया सी। दसिया भी मैं सिख मिशनरी हाँ, ते बड़ौदा विच जिहड़ा तुसीं भाषण दिता है उस दे संबंध विच मैं कुछ विचारां करना है। टाल मटोल ते बड़ी की महात्मा, मैं बहस नहीं करनी, ये नहीं वो नहीं। पर गंगा सिंह सीधे हो गए, जो बहस नहीं करनी तो इतने लफ्ज उत्थे कहे क्यों ने, ये तो करनी पेगी, हम विचार तो करनी पेगी। वो कहने लगे अच्छा मैं नहीं अपने कुछ विचार दसदा, तू ही दस। तो गंगा सिंह ने गल इत्थों शुरू की भी तुसी हर थां ते कहंदे हो गीता मेरी मां है। गीता नूं मां कहंदे सन महात्मा गांधी, ते मां है मेरी। और ज्यादा पाठ पठन उसे दा ही करते सन, क्योंकि गीता दे कर्म फिलॉसफी बड़ी जोर दी है, ते शुभ कर्मां दे ते महात्मा गांधी बहुत जोर देंदा रहा। ते जिहड़ा शुभ नहीं होया उहदे शुभ कर्म पखंड होणगे। वो अज चंगा कर रहा कल माड़ा करेगा। जो शुभ नहीं होया उहदे शुभ कर्मां दी कोई जड़ नहीं होंदी। और असीं देखदे हां जिन्हां नूं शुभ कर्मां दे उत्ते मजबूर करके शुभ बनाया गया सी बारों अज वो देश के लुटेरे साबित होए ने महात्मा गांधी के चेले। और देश नूं कित्थे लै गए ने तुहाडे सामने। खैर किधरे निंदक मैनू ना समझ लेना, ते ये भी ना समझना कि मैं कोई सियासी गल छेड़ रहा, नहीं। तुहानूं एक सावधान कर रहा कि देश विदेश विच ऐसियां लहरां भी चल रही ने भी ये जिहड़े 5% ज्यादा ने किसी तरीके नाल घटाया जा, तां ही इन्हां दी आवाज़ दबाई जा सकती है, तां ही उत्थे मनमर्जी की जा सकती है। और करीबन 30-35 साल तो असी मार खा रहे हैं, 30-35 साल तो ऐसा असी देखते हैं। खैर मुख्तसर करिए। गंगा सिंह कहने लगे ये मां है ना थोड़ी? उन्होंने कहा हाँ मेरी मां है, मैं रोजमर्रा की प्रेरणा इस गीता तो लेना। गंगा सिंह कहने लगे मैनू भी सन्मान है इस ग्रंथ का, मैं निंदक नहीं। ये कीमती ग्रंथ है, इस देश की कीमती सौगात है, ऋषि व्यास की लिखी हुई है, असी कदर करते हैं। तुसी मां कहते हो, इसकी भी कदर करते हैं। पर जरा ये दसो कि यह गीता उचारण कित्थे हुई है, किहड़ी थां ते उचारण हुई है? इतिहास के खोजी इस गल नूं जानदे ने, मैदान जंग दे उचारण हुई है, कुरुक्षेत्र दे। अर्जन ने धनुष बाण सुट दिता सी, युधिष्ठिर ने तलवार सुट दी सी, नकल सहदेव ते भीष्म ने अपने शस्त्र सुट दिते सन। अर्जन ने सीधा ही कह दिता भगवान असी नहीं लड़ना। भाई क्यों नहीं लड़ना? तो अर्जन कहने लगा ओ द्रोणाचार्य मेरा चचेरा भरा, ओ दुर्योधन मेरा चचेरा भरा, ओ द्रोणाचार्य मेरा गुरु, ओ भीष्म मेरा पितामा। अपणियां नूं मारा, पितामे नूं मारा, गुरु नूं मारा,
अपने भरा नूं मारां, मैं नहीं लड़ना। हार होंदी है ते हार ही सही, नहीं कुछ मिलता ते ना ही सही, पर मैं अपनियां नूं मारना नहीं। धनुष बाण सुट दिता। श्री कृष्ण ने समझाया, अर्जन ठीक है, मैं मनदा है तेरे अपने ने, पर अपने जिस्म दे उत्ते कोई मवाद दे नाल भरिया होया फोड़ा निकल आवे, जहर नाल भरिया होया, बड़ी पीड़ा होवे और उस तो तड़पना बड़ी होवे तो चीरा देना पैंदा, तो मवाद कढ़नी पैंदी, भावें अपने जिस्म दी कढ़नी पैंदी। फोड़ा भावें अपना तां भी चीरना पैंदा है। ये सारे तेरे अपने ने, पर देश धर्म नूं चंबड़े फोड़े ने, चीर दे, इन्हां नूं कोई पाप नहीं, मार दे, इन्हां नूं कोई पाप नहीं। बुरे नूं बर्दाश्त कर लेना भी भले नूं सट मारना है, अंधेरे नूं बर्दाश्त कर लेना भी रोशनी वास्ते रस्ते बंद करने ने। कृष्ण ने गल समझाई, समझ च आ गई। सुटिया होया धनुष बाण अर्जन ने फिर चुक लिया। घमसान दा युद्ध होया ते महाभारत जो लिखी गई है उसके कथन अनुसार लखां बंदे कई दिन लड़ाई विच मौत दे घाट उतरे, और कृष्ण दे दो बोलां करके। जद प्रिंसिपल गंगा सिंह ने कहा भी जिस गीता नूं तुसीं मां कहंदे हो वो ते मैदाने जंग विच उचारण होई है, ते निरी मैदाने जंग विच नहीं उचारण होई, गीता करके जंग होई है। अगर गीता कृष्ण दी रसना तो ना निकलदी, लखां बंदे मौत दे घाट नहीं उतरने सन। ते तुसीं इसे नूं मां कही जांदे हो। एक पासे अहिंसा परमो धर्म कहंदे हो, एक पासे गुरु गोबिंद सिंह नूं भुल्ला होया रहबर कहंदे हो, ते एक पासे उस गीता नूं मां कहंदे हो जिसने लखां बंदे मौत दे घाट उतार दिते। कहंदे ने महात्मा गांधी ने जिहड़े बोल बोले, इस तो गुस्ताखी माफ उन्हां दी शख्सियत झलकदी पई हो की ने। उन्होंने कह दिता प्रिंसिपल साहब ये जंग नहीं हुई, ये अंदर दी जंग का जिक्र है। महात्मा गांधी यही कहते होंगे सन हर थां ते, ये जंग नहीं हुई, ये अंदर दी जंग का जिक्र है। ते गंगा सिंह किथे चुप करने वाला सी, कहने लगे जे ये जंग नहीं हुई तो फिर ये भी कबूल करो कृष्ण नहीं होए, कोई अंदर दी कृष्ण की गल है। ये गीता बाहर नहीं उचारण हुई, कोई अंदर दी गीता की गल है। बाहर दी गीता मन लेंदे हो, बाहर दा कृष्ण मन लेंदे हो, बाहर दी महाभारत तो इनकारी हो, इस वास्ते कि सामने गुरु गोबिंद सिंह जी नूं खंडन करने का एक मौका मिल जाता है। कहते हैं इस तरह की दो झाड़ां जद गंगा सिंह ने पाईयां, महात्मा गांधी ने बहुत वड्डी सभा विच माफी मंगी सी भी मैथों भुल हुई, मैथों गलती हुई, मैनू इस तरह नहीं कहना चाहिए था। क्योंकि गंगा सिंह ने मजबूर कर दिता, तू कबूल कर बाहर कृष्ण नहीं होया, अंदर ही है। बाहर गीता नहीं उच्चारण हुई, कोई अंदर ही हुई है, ये भी कबूल कर। अगर बाहर महाभारत नहीं होया तो बड़ी करारी चोट लगी। मैं इतनी अर्ज कर दिया कि छोटे रूप विच वड्डे रूप विच, छोटे मनुखां दे राही वड्डे मनुखां दे राही काफी समय तो ये घोल है साडे देश विच भी ये जीवदी जागदी कौम है, सिर चुकण वाली कौम है। गुरुआं दियां कोई बरकतां ने, कल नूं किधरे मालिक ना बन जान, इन्हां नूं गुलामां तो भी थल्ले कर छड्डो। ते कदी कदी मैनूं उन्हां लोकां ते तरस आ जांदा है जिन्हां ने खिड़े मत्थे गुलामी कबूल कर लई है, खिड़े मत्थे खुशी खुशी नाल। आप ही कह दिता भी ठीक है पा लो हथकड़ियां, हथकड़ियां नूं गहणे समझ लिया, ते जिहड़ा हुण हथकड़ियां नूं गहना समझ लवे ते ओहदियां ते बेड़ियां तोड़नियां ही बड़ी औखी गल है। ते गहना समझदा पिया, गहना जान के कईयां ने पा लईआं ने। खैर संक्षेप दे अर्ज करां, जद ये रोला देश दे हुणे पिछले साल गालबन 2 साल तो ज्यादा है, तो एक सज्जन उपर मेरे को दिल्ली आया, कमरे च कहने लगा गैनी जी मैं थानू कई दिनों तो सुन रहा और मैं इन्नी गल स्पष्ट रूप में कहना कि जो तीर तलवार चलाण की गल करता है ते प्रेरणा भी देता है वो गुरु नहीं हो सकता, वो संत नहीं, क्योंकि संत का हिरदा निर्वैर होता है।
ਸੰਤ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬੜਾ ਕੋਮਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਤੀਰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਮਾਰਨ ਤੇ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਰੱਠਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ ਤੇ ਹੈ, ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਾਈ ਤੇ ਖੋਲੋ, ਅਵਤਾਰਪਣਾ ਤੇ ਖੋਲੋ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲਾਣ ਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਨੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ। ਕੌਮ ਸਾਡੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਗਤ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਸਨਾਤਨੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਖੁੱਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੰਤ ਨਹੀਂ, ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੋ ਤੀਰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਉਸਦਾ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬਹਾਦਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਚੰਗਾ ਸੂਰਮਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਝ ਪੁਸਤਕਾਂ 'ਚ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ ਰਾਮ, ਪਰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਨੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਖਿਮਾ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ? ਕਿਆ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਤਨੇ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ, ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਅਵਤਾਰ ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਇਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤੋਪ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਰਾਮ ਦੀ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਬਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਤੀਰ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਜਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਰਾਵਣ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? ਕਤਈ ਨਹੀਂ। ਤਲਵਾਰ, ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ, ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਉਠਾ ਕੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕ ਲੈਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਸੁਬਪਣਾ ਹੈ, ਤੰਗ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਬਲੇ ਮੁਆਫ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਤਸੁਬ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਿਟਕਾਰ ਹੈ, ਲਾਨਤ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਨਿਖੇਧ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਵੀ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਮ ਨੂੰ ਇਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਰਾਹੀਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਰਾਮ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨੇ। ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਇਹ ਕਥਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟੀ। ਸੁਗਰੀਵ ਤੇ ਬਾਲੀ ਦੋ ਭਰਾ ਸਨ। ਬਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸੁਗਰੀਵ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤਾਰਾ ਜਬਰਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਈ।
सुग्रीव ने हत्था कमजोर चला गया राम को, कहंदा भगवान मेरी मदद करो, मेरे नाल अन्याय होया, मेरे ते जुल्म होया। कहंदे इतनी गल सुन के राम आपे तो बाहर हो गए, इतना अन्याय किया है तेरे नाल वड्डे भरा ने, अच्छा उस दुष्ट नूं मैं जमीन ते नहीं रहन देना। कहना दरख्तां दी ओट दे छुप के बाण मारिया, बाली नूं लगया, बाली तड़पदा होया जमीन ते गिरिया, पर उसने वेख लिया कि मैनू मारन वाला कौन है। बोल पिया राम छुपण दी लोड़ नहीं, मैं वेख्या मैनू मारन वाला सुग्रीव नहीं बल्कि तुसी हो। श्री राम सामने आ गए, कहने लगे हाँ मैं मारिया। बाली कहंदा मैं ते सुनिया तुसी अवतारी पुरुष हो, ऋषि विशिष्ट दे चेले हो, संत हो, भगत हो, ते तुसी तीर चलाया और मैनू मार छड़िया, इन्ना वड्डा जुल्म कीता। राम कहंदे नहीं पुरखा, तैनू मार के ते मैं पुन खटिया बहुत वड्डा, तैनू मार के मैं सवाब दा काम कीता, धर्म दा काम कीता। बाली कहंदा है भगवान बंदे नू मारना क्या धर्म है? राम कहंदे नहीं, बंदे नू मारना ते अधर्म है, पर तेरे वर्गे बंदे नू मार देना धर्म है, तेरे वर्गे बंदे नू मार देना पुण्य है, स्वाब है। तो राम दे बोला नू कवि तुलसी अपनी कविता च पेश कर देना, अनज बधू भगने सुत नारी, हे सठ ये कन्या समचारी। अनज बधू छोटे भरा दी स्त्री, भगनी भैण, सुत नारी पुत्र दी नारी नू, अनज बधू भगनी सुत नारी, हे सठ ये कन्या समचारी। हे सठ हे मूर्ख गल सुन, कन्या नू भैण और छोटे भरा दी स्त्री, ये चारों ही कन्या के समान ने, ये चारों ही बच्चियां ने। अनज बधू भगनी सुत नारी, हे सठ ये कन्या समचारी। सिर्फ कन्या ही कन्या नहीं बल्कि नू भी कन्या, छोटे भरा दी जिहड़ी पत्नी है वह भी कन्या, उन्हों भी कन्या का दर्जा देना चाहिए। अनज बधू भगनी सुत नारी, हे सठ ये कन्या समचारी। ताहे कुदृष्ट बिलोके जोई, ताहे बधे कछ पाप ना होई। इन्हां चारां नूं जिहड़ा भैड़ी दृष्टि नाल वेखे, राम कहंदे अगर मैं मार दियां मैनूं कोई पाप नहीं, मैं पुण्य खटिया, मैं धर्म का काम कीता। तू कह पिया कि मैं पाप कीता है, परमात्मा की दृष्टि च मैं कोई पाप नहीं कीता, मैं मनुखता के रस्ते च रोड़ा हटाया। कमाल दी गल, एक वड्डा भिरा छोटे भिरा दी पत्नी रख ले ते राम उसनों मार दें ते भारतवासी कहन सवाब दा कम है, तुलसी भी कहे सवाब दा कम है। ते जद हिंदुस्तान दीयां बच्चियां गजनी के बाजार विच टके टके च विकदियां सन, उदों गुरु गोबिंद सिंह जी ने तलवार चुक ली ते तुसी आखो गुरु ही नहीं है, वो अवतार ही नहीं है। एहसान फरामोशी की इंतहा हो गई, एहसान फरामोशी की हद हो गई। यह विचार सुनांदे होया मैनू अपना एक बचपना याद आया। मैं खालसा स्कूल का विद्यार्थी सी ते उत्थे साडे एक ज्ञानी टीचर सन, सानू गुरबाणी का पाठ सिखाते सन, ज्ञानी हरि सिंह जी, चंगी तरह मैनू याद आया। पाठ पढ़ाते हुए उन्होंने एक दिन अपनी आप बीती सुनाई। फ्रंटीयर के इलाके डिस्ट्रिक्ट बन्नू तो थोड़ी जी दूरी ते एक पाड़ा चनार का इलाका है। लोकी अक्सर गर्मियों के दिनों उत्थे जाते सन, ठंडा इलाका होने करके। ज्ञानी हरि सिंह जी कहते मैं भी चला गया गर्मियों की छुट्टियां, 2 महीने दी छुट्टियां। झील सरोवर वगदे हुए झरने उत्थे आम ने। कहते एक सज्जन ते उसका छोटा जिहा बच्चा किसी सरोवर दे नहा रहे सन। नहांदियां नहांदियां बच्चा किधरे गहरे पानी च चला गया, डुबन लगा। ते प्यो ने शोर मचाया भी बचाओ मेरे बच्चे नूं, बच्चा गया, आप तैरना जानता नहीं सी। दूरों कोई
गालबन चीनी नस्ल का सिया टूरिस्ट उत्थे घूम रहा सी। कैमरा उसके कोल फोटोआं वोटोआं लै रहा सी। उन्हें देखिया बच्चा डुबया और डुबन लगा, उन्हें भज के छाल मार दी ते डुबदे हुए बच्चे नूं कढ के लिया। प्यो ने अपने बच्चे नूं गल नाल लाया, छेती छेती उन्होंने कपड़े पवा के चल गया। ज्ञानी हरि सिंह कहते ने यह करिश्मा, ये गल, ये परोपकार का वह दृश्य उस सिया का मैं अपनी अखां नाल वेखे, पर उहदे चेहरे ते परेशानी बड़ी सी। इन्ना पुण्य का काम करके बेचैन हो गया सी। कपड़े उसदे भिज गए और कुछ भी उसने देरी नहीं की थी। ज्ञानी हरि सिंह कहते मैं जब जाके पूछया भी तू इतना वड्डा काम किया ते तेनू खुश होना चाहिए, तू मुरझा गया, तू बेचैन हो गया, परेशान हो गया, गल की है? वो आखन लगा साडे देश की सभ्यता है कि किसी का डिग्या होया रुमाल भी चुक के दे दई है, वो थैंक्स जरूर करता है, धन्यवाद करता है। ते मैं इतने गहरे पानी च अपनी जिंदगी नूं हथेली ते रख के इहदे बच्चे नूं कढ के लिया, उन्हें मेरी तरफ वेख्या तक भी नहीं, अपने बच्चे की बांह पकड़ के चला गया। मेरा शुक्रिया ही नहीं, धन्यवाद भी नहीं। ज्ञानी हरि सिंह कहते हैं कि मैं जवाब दिता भी तू एक डुबदा होया बच्चा बचाया, बदले विच तेरा धन्यवाद नहीं होया ते तू दुखी है, बेचैन है। पर यह वो कौम है, इसने उन्हों का भी धन्यवाद नहीं किया जिसने इन्हों के बच्चे बचाने की खातर अपने बच्चे खुआ दिते सन। इन्हों का धर्म बचाने की खातर अपना पिता शहीद करा दिता सी, इन्होंने उसका धन्यवाद नहीं किया, तेरा की खाक करनगे। एहसान फरामोशी की इंतहा है। दिल्ली के चांदनी चौंक दे कोई अपना खून ना डोलदा हिंदुस्तानियों के मत्थे का तिलक नहीं बनना सी। कोई चलते हुए श्वासां की डोरी ना रोकदा तोड़दा जनेऊ नहीं बनना सी। पर कौन मन्ने? मैं दिल्ली के गांधी ग्राउंड विच स्पष्ट रूप विच कहे गुरपुरब सानू नहीं मनाना चाहिए, गुरु तेग बहादुर साहब जी का शहीदी गुरपुरब। ये वो मना जिन्हां दे मत्थे ते तिलक है, जिन्हां ने जनेऊ पा के रखे, असी सहयोगी बनीए। मनान ओ क्यों कि इतना वड्डा जिहड़ा साका होया ते तिलक जंजूरा खा प्रभ तांका, किनों बड़ो कलू मैं साका। किसने अपने प्राण दिते, किसने अपना खून डोलिया, मत्थे का तिलक बनया, गले का जनेऊ बनया, उन्होंने पता ही ना हो कि अज दे दिन साका की घटिया इस चांदनी चौंक दे। एहसान फरामोशी की इंतहा नहीं जानी और बदले दे इस एहसान नूं करीबन करीबन मैं देखदा मिटाण की ही कोशिश की जाती है। इत्थे दाद देनी पैगी कुछ लेखकां नूं, खास करके लाला दौलत राय। आर्या समाज का यह उग्गा प्रचारक से ते 1906 दे लाहौर दे इसने एक किताब लिखी सी। उसने बड़ा तहलका मचाया सी। ये फिर दोबारा छपी सी 300 साला गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के प्रकाश उत्सव दे दिल्ली छपी सी। दिल्ली दी सिंह सभावां ने मिल के फिर कोशिश की थी कि छपनी चाहिए। उस किताब विच लाला दौलत राय ने कमाल कर दिता है। वो कहता है रूहे जमीन दे थे अगर कोई अवतार आया है तो सिर्फ गुरु गोबिंद सिंह है। कहता मैं हाँ आर्या समाजी, मेरा इष्ट स्वामी दयानंद है और मैं प्रचार करदा आर्या समाज का, पर मैं मजबूर हाँ इन्ने लफ्ज कहण दे कि रूहे जमीन दे अगर कोई श्रेष्ठ अवतारी कला लैके आया है तो वह गुरु गोबिंद सिंह ने। दिबाचा दी भूमिका दे चो शब्द लिखदा है कि कुदरत दी जद सारी सियाणप इकट्ठी होई, परमात्मा दी जद सारी मेहनत इकट्ठी होई ते परमात्मा दी जद सारी शक्ति दा संग्रह होया ते बने गुरु गोबिंद सिंह। वो इंज कहंदा हे ईश्वर तू ऐसा मनुख भी बना सकदा, ऐसे मनुख दी घाड़त भी घड़ सकदा है जिहदी तुलना किसे नाल ना दिती जाए। ये तेरी कारीगरी नूं दात देनी पैंदी है, तेरी सियाणप नूं दात देनी पैंदी है, तेरी बख्शिश नूं दात देनी पैंदी।
ਹੁਣ ਨਿਰੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਦਲੀਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਔਰ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਮੈਂ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਜੰਗ ਵੇਖਦਾ, ਬਈ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਜੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰਨ ਨੇ 2 ਇਸਤਰੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਰਾਵਣ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਸਰੂਪਨਖਾ। ਸਰੂਪਨਖਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਕਸ਼ ਨਿਗਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਰੂਪਨਖਾ ਜਿਹਦੇ ਨਕਸ਼ ਨਿਗਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੰਧਰਵ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਵੈੰਬਰ, ਸਵੈੰਬਰ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਪਤਾ? ਸਵੈੰਬਰ ਆਪ ਵਰ ਚੁਣਨਾ, ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਸਵੈੰਬਰ, ਸਵੈਮ ਵਰ ਚੁਣਨਾ, ਆਪ ਵਰ ਚੁਣਨਾ, ਇਹਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਵੈਮ ਵਰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਬੱਚਾ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਜਜ਼ਬੇ ਹੀ ਜਜ਼ਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਜੋਸ਼ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਸ਼ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਜਰਬੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਚੋਣ ਕਰਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੋਣ ਕਰਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਨਿਰਾ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਹੈ। तो स्वयंवर करीबन करीबन हिंदुस्तान की सभ्यता ते पूरा ना उतरिया, आखिर इसनूं तलांजलि देनी गई। लेकिन उस जमाने स्वयंवर की खुल सी ते स्वयंवर स्वयं विआह किस तरह हो जाता सी, एक दूजे के गले च माला पा देनी, गल खत्म, और कुछ नहीं होंदा सी। स्वयंवर वर हो गए, एक दूजे के वर की चुनौती हो गई। कहंदे ने माला सरੂਪਨਖਾ लक्ष्मण के गल दे पाण लगी सी। लक्ष्मण एक पासे हो गया, कहंदा देवी गल सुन, मैं ता जिंदगी अणविआया रहण दा प्रण कीता है, करण गृहस्थी बनना ही नहीं। तू मेरे भरा नाल गल कर सकदी है। मजाक विच गया, हालांकि भरा तां विआया होया नाल सीता, मजाक विच गल कीती। किसी इस्त्री नाल मजाक करना इत्थों अवगुण शुरू हो जांदे। अवल मजाक किसी नाल भी करना, मजाक विच भी बंदा चोट ही पहुंचांदा, और की है। खैर मजाक होवे सिर्फ हासे नूं जन्म देण वास्ते ते गल समझ च आउंदी है। कई बंदे ऐसे ने सीधी चोट नहीं पहुंचा सकते, मजाक दे चोट पहुंचाते हैं। तो मजाक दे बड़ी चोट की गई। ਸਰੂਪਨਖਾ राम कोल चली गई ते कहन लगे तू मैनू विआह लै। राम कहन लगे नहीं, मैं तो गृहस्थ ही हाँ, मेरी पत्नी मेरे नाल है, तू मेरे भरा नाल गल कर ले। वो ज्यों लक्ष्मण नाल गल कर दी, उन्हें गुस्से च उहदी नक कट दी। हुण ये किहड़ा संत बना है कि किसी इस्त्री की नक कट दी जाए। वो रोंदी हुई अपने भरा कोल गई, बई ऐ होया मेरे नाल। रावण कहंदा फिक्र ना कर, ये तेरी नक नहीं कट्टी, मेरी नक कट्टी। आम बंदा हुंदा उन्हें भी गुस्से च आना सी, उते बादशाह से, उते राजा से। कहंदा हुण मैं राम दी नक कटनी है, तो किसी की पत्नी चुक के लियाना अगली की नक कटनी सी, गल इन्नी है। लाला दौलत राय कहंदे ने इस झगड़े की बुनियाद 2 इस्त्रियां ने, ਸਰੂਪਨਖਾ ते सीता, और कुछ नहीं। और पता अगे उसने की दलीलां दित्तियां ना, वो कहंदा 4 वेदां दा पाठी रावण है, 4 वेदां दा पाठी राम है। शिवजी का उपासक रावण है, शिवजी का उपासक राम है। जिन्होंने इतिहास पढ़िया उन्होंने पता है, रामेश्वरम दे शिवजी की पूजा की है राम ने, ते शिवजी इष्ट सी रावण का। लाला दौलत राय कहते दोहां का इष्ट इको है, दोवें 4 वेदां दे पाठी ने, दोवां का धर्म एक है, दोवें राजे ने। जंग का कारण, लड़ाई का कारण 2 इस्त्रियां ने, और कुछ नहीं। और कहंदा इसे 2 इस्त्रियां की जंग के आले दुआले समुची रामायण घूमती, समुचे राम का जीवन घूमता। गल उसने इत्थे नहीं मुकाई, जरूर पढ़नी। इस उर्दू की किताब नूं इंग्लैंड के सिंघां ने फिर पंजाबी रूप दे के छापिया है। किताब का नाम है सुआने उमरी गुरु गोबिंद सिंह, आज कलम लाला दौलत राय। सुआने उमरी गुरु गोबिंद सिंह।
और जिस दिन ये किताब मैनू लभी, गालबन कोई 9-10 साल पुरानी गल है, आशश कर उठी मेरी आत्मा कि इस ढंग नाल भी लिखिया जा सकता है, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का चित्रण इस ढंग नाल भी किया जा सकता है। उदों दाद में दिती, मैं कि ठीक है, भावें तू आर्या समाज का प्रचारक है, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का चित्रण इस ढंग नाल भी किया जा सकता है। उदों दाद में दिती, मैं कि ठीक है, भावें तू आर्या समाज का प्रचारक है, पर सिख प्रचारक भी इस ढंग नाल सोच नहीं सके, विचार नहीं सके। वो अगे लिखता है, कहता जब मैं महाभारत की जंग का अध्ययन करदा, महाभारत, तो उस जंग का कारण भी एक स्त्री है, वो है द्रौपदी, और कुछ नहीं। ये जंग नहीं होनी सी। वो उदाहरण देता है, कहना द्रौपदी चित्रकला, संगीत कला ते कविता की कला विच माहिर सी, कवि कवित्री भी सी, संगीतकार भी सी ते चित्रकार भी सी। 3 गल्लां इहदे कोल सन सुभावक। पांडुआं ने नवां महल बनाया बड़ा खूबसूरत, ते दावत दिती कौरवां नूं भी तुसीं साडे घर आओ ते भोजन छको। आले दुआले दे ऋषि मुनि, जागीरदार, धनाड़, राजकुमार, राजियां नूं दावत दिती गई महल दे विच। दुर्योधन भी बन ठण के आया, ते जिहड़ी द्रौपदी सी उसने घर नूं सजाया बड़ा, जमीन दे उत्ते इस ढंग दे रंग बिखेर दिते, जमीन सरोवर लगदी सी। अगे बनया होया सरोवर सी, उहदे उत्ते इस ढंग दा रंग पा दिता, वो जमीन लगे। चित्रकार बड़ी सी, पानी दे विच बेल बूटे बना दिते ते जमीन दे उत्ते सरोवर बना दिता। अखां नूं धोखा लगे, इस ढंग दा बनाया। कहंदे जो दुर्योधन आया ना ते रस्ते च पानी देख के, हुण पानी है नहीं सी, रंग सी, उन्हें संभल के पैर रखे, ते ज्यों देखदा पैरां नाल रंग लग गया है ते सरोवर नहीं है, निश्चिंत होकर चलन लग पे। अगे पानी दे उत्ते इस ढंग दे बेल बूटे बनाए गए सन, जमीन लगदी सी, ज्यों उसने पैर रखे ते डुब गया। वो जिहड़ी चित्रकारी सारे दिन च कीती सी ना, वो सारी खराब हो गई ते द्रौपदी औखी हो गई। वो कहण लगी अंधे दा अंधा ही है। दुर्योधन दा पिता अंधा सी, धरतराष्ट्र नेत्रहीन सी, अंधा सी। कहण लगी ये अंधे दा कंबख्त अंधा ही है। हुण ये बचन चोट कर गए, कौड़े सन। ठीक है, प्यो अंधा जरूर सी, पर गल इतनी कुरख्त सी, हिरदे च चोट कर गई। दुर्योधन ने उत्थे भोजन नहीं छकिया, महफिल विच नहीं बैठा। कहने लगा द्रौपदी मैं हुण तैनूं दसांगा कि अंधे दा अंधा की करदा है। इन्नी गल कह के चला। कुछ मुद्दत बाद उन्हें पांडवां नूं जुआ खेडण ते मजबूर कर दिता। ते मैं भारत के ब्राह्मणों को पुछदा हुंदा, बाहर भी कभी कोई हिंदू जगत का आलम मिल जाए जरूर पुछीदा है भी तुसीं कहंदे हो युधिष्ठिर है धर्म पुत्र, ते तुहाडा धर्म पुत्र ते जुआ पिया खेडदा है। पता की जवाब देना, उते जी दुर्योधन ने मजबूर किया तां जुआ खेडिया, थोड़ी खेड। ते मैं किस तरह कोई भी कह सकता है मैं पीनी थोड़ी सी, अगले ने मजबूर किया तां पी लई। मैं कतल थोड़ी करना सी, अगले ने मजबूर किया तां कतल कर छड़िया। नहीं, ये तो हुजतां ने, ये तो गल्लां ने। जिन्हें नहीं जुआ खेडना, दुनिया की कोई ताकत उसनूं जुआरी नहीं बना सकती। जिसने नहीं शराब पीनी, क्षमा करनी, दुनिया की कोई ताकत उसनूं शराबी नहीं बना सकती। खुद अंदर जुए खेडण की जरूर भावना होगी। जब इतनी गल मैं कहना तो कौड़ी बहुत लगती उन्होंने। कहते सिख प्रचारक तो इस तरह बोलते हैं। मैं कहनी तू जवाब दे, असी वापस ले लेने अपने शब्द बचन वापस ले लेने। तू इसका जवाब दे कि संत जुआ खेडदा, धर्म पुत्र जुआ खेडदा, तो जे धर्म पुत्र जुआ खेडदा है तो अधर्मी की करते होणगे। खैर जुआ खेडे, जुए दे विच उन्हें धन हारिया कि जब सारा धन हार गया फिर राजपाठ हारिया। जब राजपाठ हार गया तो फिर महल हार गया जिहड़ा नवां बनाया सी। ते जब महल हार गया तो तन दे गहने हार गया जिहड़े पहने हुए संसारियां ने। सिर दा ताज हार गया। सब कुछ जब हार गया तो उठ के जान लगे। दुर्योधन ने बांह पकड़ी, कहंदा नहीं किथे जाना है, होर दात ला।
युधिष्ठिर कहता मेरे को हुण होर कुछ है नहीं। दुर्योधन कहता एक कीमती चीज ते है, वो तो तू दां ते लाई नहीं। ਉਹ की द्रौपदी, ਉਹਨੂੰ भी ला। तो द्रौपदी भी एक चीज है कि जिती जा सकती है, हारी जा सकती, खरीदी जा सकती है, वेची जा सकती है। ये धर्मपुत्र की दृष्टि है, ये धर्मपुत्र की नजर है। प्राचीन समय तो इस्त्री जगत नाल कोई बहुता इंसाफ नहीं होया, ते जिस ढंग की बगावत इस्त्री ने यूरोप की दुनिया च की, वो भी कोई ठीक नहीं। इंसाफ तो नहीं होया, क्योंकि समुची दुनिया वख-वख बाजार आउंदे सन भी ये कपड़े का बाजार है, ये सराफा बाजार है, ये लोहे का बाजार है, ये इस्त्रियां का बाजार है। समुची दुनिया जिथे लोहा खरीदिया जाता सी, बेचिया जाता सी, सोना खरीदिया जाता सी, बेचिया जाता सी, इस्त्री खरीदी जाती सी, बेची जाती सी। और जो इस्त्री जुए विच हार दी जाए तो ये धन है और की एक चीज है, जिती जा सकती, खरीदी जा सकती, इस तो ज्यादा और की है। मनुख की मनोवृत्ति आदि काल तो ऐसी रही है। ते आम मनुखों का तो कहना ही छो, धर्मपुत्र युधिष्ठिर धर्मपुत्र, जुए दी द्रौपदी भी हार गए। ते जब द्रौपदी नूं हारिया ते उदों सही मैनिया च दुर्योधन ने अपनी जित महसूस की। उन्हें दुशासन नूं आवाज मारी, क्या उसनूं केसां तो पकड़ के थे खिंच के लिया, जो मैनूं कहंदी सी अंधे दा अंधा। उन्होंने मैं दसा अंधे दा अंधा की करता है। वो केसां तो पकड़ के खिंच के लिया। भाई साहब भाई गुरदास जी ने लिखिया सा मत्थे वाल दरोपता केसां नूं खिंच के लिया, केसां नाल पकड़ के घसीट के सभा विच लियांदी। और सभा की रूपरेखा भी मैं थोड़े सामने रखा, हैरान रह जाओगे। उस सभा विच कर्ण बैठा है, भीषण पितामह बैठा है, द्रोणाचार्य बैठा है, वक्त के पंडित बैठे ने, वक्त के गुरु बैठे ने, वक्त के संत बैठे ने उस सभा विच। ते जब दुर्योधन ने दुशासन नूं कहा कि इसनूं बड़ी महफिल विच नगन कर, तो वह वेखदी है पहले अपने पांडवों की तरफ, बई मेरी हिफाजत करनगे, पर नहीं, वो सिर ढा के बैठे सन। फिर देख रही है भीष्म पितामह की तरफ, बई अजोके समय का सब तो बड़ा संत है, ये इतना जुल्म बर्दाश्त नहीं होने देगा। सिर्फ 2-4 मिनट में खड़े हो लेना। पर उत्थे भीष्म पितामह भी नहीं बोले, सिर ढा के इंज बैठा रहा, नहीं बोले। फिर सोच दिए गुरु बैठा है, द्रोणाचार्य गुरु बैठा है, ये अनर्थ नहीं होने देगा। पर ज्यों वेख दिए कि गुरु ने भी सिर नीवा कर छड़िया। हुण तुसीं खुद अंदाजा लगाओ, एक निक्के जिहा जुल्म के खिलाफ गुरु नहीं बोल सकता, संत नहीं बोल सकता, ते आम दुनिया की की हालत होगी। और भारत नूं शेर बनाया जिस गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने, उसका धन्यवाद नहीं, जिन्होंने बोलने की जांच आ गई है, जालम के सामने, दुराचारी के सामने, ठग के सामने, औरंगजेब नाल भी मत्था मारन की जांच आ गई है। ऐसे सूरबीर देश में पैदा कर देते। लाला दौलत राय लिखते हैं कि यह जंग हुई एक स्त्री के कारण। श्री कृष्ण ने बचाया उस वक्त, द्रौपदी का दामन पकड़िया और अनर्थ नहीं होने देता। लेकिन इतनी गल तो मननी पेगी कि इतना बड़ा युद्ध होया एक स्त्री के कारण, द्रौपदी। दोहां का गुरु एक है, जिहड़ा गुरु पांडुआं दा उही कौरवां दा, दोहां का मजहब इको है, दोवें सनातनी मत के पुजारी ने, दोहां का गुरु एक है, दोवें राजे ने, दोहां के अंदर होर कोई मतभेद नहीं, एक स्त्री तो झगड़ा खड़ा होया। लाला दौलत राय कहते जब मैं आउंदा गुरु गोबिंद सिंह जी के, सोचदा कि क्यों झगड़े, क्यों तलवार चुक ली, क्यों बंदूक नाल गल करते हैं, क्यों तोपां अगे दीड़ दी, क्यों भगतां नूं सिपाही बना छड़िया। कहता जब मैं सोचदा इस ढंग नाल कारण की है, कहता कारण कोई स्त्री ते दिखाई देंदी नहीं। फिर हिंदुस्तान के ऋषि मुनि लिखते हैं कि जर जमीन जोरू ही जंग का कारण हो सकते हैं, होर नहीं। जर तो इत्थे कारण धन भी नहीं है, कारण जमीन भी नहीं है, कारण स्त्री भी नहीं है। फिर लाला दौलत राय कहते एक पासे हिंदुस्तान का बादशाह, एक पासे फकीर जिसके कोल कुछ भी नहीं है।
ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਸੈਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਧਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਸਿੰਘ। और भुखे ने गुरु गोबिंद सिंह जी ने खुद कबूलिया, गुरस ने चिकारे कुनद चेहल नर के देह लग बरायत बरो बेखबर, मेरे 40 भुखे सिंह की करना, तू इतनी लखां दी सेना ले आया। मेरे भुखे सिंह लड़े ने सूरबीरां की तरह। लाला दौलत राय कहने ने एक पासे एक फकीर है, एक पासे एक बादशाह, एक दे खजाने भरे पे ने, एक दे ਸਿੰਘਾਂ वास्ते भी रोटी कोई नहीं। जंग का कारण की है? स्त्री, जमीन या जर, धन? कहता नहीं, जंग का कारण सी मजलूमां की रखिया, देश की रखिया, धर्म की रखिया। कहता धर्म की खातर, देश की खातर ते देश की सभ्यता की खातर भी लड़ाई हो सकती है। कहता रूहे जमीन दे पहला ही सूरमा मिलता है, होर कोई नहीं। लाला दौलत राय कहता इस तरह का महापुरुष ये पहले ही मिलता है जो लड़िया सिर्फ दूजियां वास्ते। रुखां तले रात कट के लोगां वास्ते महलों के सुपने वेखदा रहा, अपने बच्चे कुहा के लोगां दे बच्चे बचाए, खुद यतीम बन के दूजियां नूं यतीमी की हालत तो बचाया। लाला दौलत राय इत्थे स्पष्ट रूप में कहने कि अवतारी जगत दे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का मुकाबला नहीं किया जा सकता। ते हुण एक मुस्लिम शायर की गल कह के मैं समाप्ति करा। ये मुस्लिम शायर है अला यार खां योगी। इसने 2 किताबां लिखियां ने, गंजे शहीदां, शहीदाने वफा, और ये दोवें गुरुद्वारा श्रोमणी प्रबंधक कमेटी ने छाप दित्तियां ने। दोवें उर्दू दे ने, पर एक पंजाबी लिपि दे छापियां गईयां ने, चूंकि उर्दू के पढ़न वाले घट रहे हैं। उत्थे अला यार खां जोगी लिखता है, इंसाफ करे जी में जमाना तो यकीन है। कहता दुनिया के आलम विद्वान बैठ के जे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं इंसाफ पसंदी की दृष्टि नाल वेखन, नहीं वेख्या किसी ने, बड़े बड़े महात्मा लोगों ने नहीं वेख्या, आम बंदियां दे ते कहना ही सी। अला यार खां कहंदे अगर इंसाफ की दृष्टि दे नाल कोई वेखे, इंसाफ करे जी में जमाना तो यकीन है, कह दे गुरु गोबिंद का सानी ही नहीं। फिर गुरु गोबिंद सिंह का कोई सानी नहीं, कोई मुकाबला नहीं। पर इत्थे सवाल खड़ा किया जा सकता है, तू मुस्लिम, तू मुसलमान अला यार खां, तू गुरु गोबिंद सिंह बारे ऐसा लिखदा है, किधरे खुशामद ते नहीं कर रहा, लोभ वस होके ते नहीं कह रहा, या डर के ते नहीं कह रहा। पता इसकी अगली नज़म की है, गंजे शहीदां दी। कहंदा अल्लाह की सौगंध है, नानक की कसम है, कसम चुकदा, अल्लाह की सौगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो गोबिंद की तारीफ वो कम है। हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, सतगुर के लिखूं वसफ कहां ताबे रकम है। कहता हाथ विच शायर की कलम है, पर गुरु गोबिंद सिंह जी की कथा लिखा कलम टुट जाती है, कुछ भी नहीं, मैं लिख नहीं सकता। और इस सच्चाई के उत्ते बोल पूरे उतरते हैं कि जगत के आलमा ने इंसाफ पसंदी की दृष्टि के नाल गुरु गोबिंद सिंह जी को नहीं देखा, उस महान सूरे सतगुरु को नहीं देखा जिसने जीवन का ढंग दसिया भी जीवना है तो किस ढंग नाल जीवना, मरना है तो किस ढंग नाल मरना है, अणख किसनों कहते हैं, गैरत किसनों कहते हैं, भारत वासियों के अंदर फूकी। अला यार खां कहते हैं अगर कोई इंसाफ करेगा तो इस नतीजे पे पहुंचेगा, एक आंख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे, सागर को या मंझधार को या लहर को देखे। गुरु गोबिंद सिंह जी का जीवन सागर की तरह है, लहरां का जिक्र करिए, किनारियां का जिक्र करिए, गहराई का जिक्र करिए। शाद मोहम्मद लतीफ कहता है मैं लिखण लगा सी गुरु गोबिंद सिंह जी की गल, हुण नहीं लिखनी। बे क्यों? कहते हैं मैं लिखण लगा सी एक बादशाह की जीवन कथा
जो बैठा है सिंघासन ते चौर होंदी पई है, लोकी नजराने रखते पे ने। एक बादशाह की गल लिखण लगा सी, पर मैं की देखदा, हथ दे च कलम है, जमुना का किनारा है, पौंटे की धरती है, बहुत गहरियां सोचां दे च ओही बादशाह डुबिया होया है, कुछ लिखदा पिया है। उदों प्रतीत होया कि कोई कवि है, ये तो कोई शायर है। फिर कहंदे मैं देखिया कि हथ दे च माला है, रसना ते धुन अल्लाह दी है, परमात्मा दी है। उदों प्रतीत होया कोई जोगी है, कोई संत है, कोई अभ्यासी है। कहंदा मैदान जंग च मैं तलवार चलांदा होया वेखिया, उदों प्रतीत होया कोई सिपाही है। ते फिर मैं देखिया बड़ा धन लुटांदा होया, उदों प्रतीत होया कोई दानी है, कोई दाता है। ते मैं देखिया पंजां दे अगों हाथ जोड़ के अमृत पिया मंगदा सी, उदों प्रतीत होया कोई मंगता है, कोई भिखारी है। कहंदा किस दा लिखां, किस रूप की कथा लिखां, मंगते दी, बादशाह दी, सूरमे दी, कवि दी, संत दी या संसारी दी, दाने दी, किसकी कथा लिखां। अनेका रूप ने। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे भाई साहब भाई नंद लाल साहब कहते हैं, हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह बादशाह दरवेश। गुरु गोबिंद सिंह जो बादशाह होंदे ने वो दरवेश नहीं आउंदे, जो दरवेश होंदे ने वो बादशाह नहीं आउंदे। नंद लाल कहते पहली दफा दुनिया ते वो बंदा आया जो बादशाह भी है ते दरवेश भी है। और लाला दौलत राय कहते अवतारी दुनिया दे पहली दफा ऐसा मनुख आया जिहदे आले दुआले बाकी दे अवतारां दी परिक्रमा कराई जा सकदी। ये लाला दौलत राय दे बोल ने, ये लाला दौलत राय दियां लिखतां। अला यार खां ते दौलत राय नूं सामने रख के मैं सारियां विचारां तुहाडे सामने रखियां। सिख जगत दे इतिहासकारां ने ते बहुत कुछ लिखिआ, उन्हां दी कलम तो कुर्बान जाइए, उन्हां दे दिमाग तो कुर्बान जाइए। पर मैं अर्ज करदा पिया अनमतियां ने भी सच्चाई नूं कबूलिआ, अनमतियां ने भी इस गल नूं कबूलिआ। और ये राधा स्वामी और इस तरह के होर बंदे पता अजकल की पै कहंदे ने, तीर तलवार चलाण वाले गुरु नहीं होया करदे, इंज पै कहंदे ने पंजाब दे भोले भाले सिंह लपेट के आ जांदे। हुकूमत के कुछ पिट्ठू भी ऐसा कहने जो तोप ते बंदूक की गल करे वो संत नहीं होया करता, वो तो एक सिपाही है। ठीक है, महाराणा प्रताप का दर्जा दिता जा सकता है, पर मैं इतनी अर्ज करा जो हिंदुस्तान में महाराणा प्रताप को दर्जा दिता गया है, जो शिवाजी मराठे को दर्जा दिता गया, उतना दर्जा भी गुरु गोबिंद सिंह जी को नहीं दिता गया। ये भी मैं अर्ज कर दें, उतना भी नहीं दिता, उतनी गल भी कोई नहीं। इतनी वड्डी बेइंसाफी उस महाबली सूरमे नाल है जिसने देश ते देश की संस्कृति की खातर अपना सब कुछ कुर्बान किया, अपना सब कुछ निछावर किया। भगत कबीर की एक पंक्ति को आधार बना के मैं विचारां थोड़े सामने रखियां। अब ते जबाए पृथ्वी आकाशा, धरती तो निर्माणता सीखनी है, पवन तो पवित्रता सीख फुर्तीलापन सीखना है, पानी तो पवित्रता सीखनी है, आकाश तो समान दृष्टि सीखनी है, पर अगन तो जोश लेना है, वो भी साडे अंदर है। अग साडे अंदर ते पुरखा जोश भी तेरे अंदर होना। ते तू मुर्दा है ते अणक ते जोश ना रहा ते तू आध्यात्मिक तौर पर मुर्दा है और की मर गया। अग अंदर ठंडी पै गई तो कह देने ते मर गया, ते जोश अंदर ठंडा पै गया, अणक अंदर नहीं रही तो मर चुके, मुर्दा बिल्कुल मर चुके। ठीक है, माड़ा जिहा भी श्वास चलता होवे ना, माड़ा जिहा तां भी वैद कहंदा कोई गल नहीं, मरिया नहीं अजे। माड़ी जी भी नबज चलती होवे ते कहना पैंदा हाँ, तो मैं देखदा कईयां दे अंदर बिल्कुल माड़ी जी नबज चलती है। शायद सतगुरु की बाणी इन्हां सुरजीत कर दे, जीवन दे दे। माड़ा जिहा किधरे श्वास लैंदे ने पिठकी भर के, जिवें मरण के किनारे आउंदा। शायद सतगुरु मेहर करे, बख्शिश करे, श्वास चल पैन, पर गुस्ताखी माफ कुछ बिल्कुल ठंडे पै गए, मुर्दा ही हो गए, कोई श्वास कोई नहीं, कोई नबज नहीं चलती पई। साहब मेहर करन, बख्शिश करन कि श्वास अणक दे चलते रहन, ये गर्मी साडे अंदर बनी रहे, ये जोश साडे अंदर बना रहे। भगत कबीर जी महाराज के ये बोल ने, हालांकि वह संत ने, भगत ने, आपनों पता होवे सिकंदर लोधी नाल टक्कर लई सी कबीर ने बड़ी जबरदस्त। और जेड़े जेड़े इस तरह के हम ख्याल ने उन्हें भगतां की बाणी गुरु ग्रंथ साहब दे है, वरना हजारां भगत होए ने हिंदुस्तान दे, और किसी को नेड़े नहीं आन दिता गया। इतनी मैरिज कर दे
जो गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी के विचारों नाल सहमत ने, जो गुरु अर्जन देव जी महाराज की विचारधारा के मालक ने। भगत कबीर कहते हैं, बंदे तू निर्माण जरूर बन, क्योंकि तेरे अंदर धरती है, पर जोश भी चाहिए क्योंकि तेरे अंदर अग है, पवित्रता भी चाहिए क्योंकि तेरे अंदर पानी है, फुर्तीलापन भी चाहिए क्योंकि तेरे अंदर हवा है, पवन है, और समान दृष्टि भी चाहिए है क्योंकि तेरे अंदर आकाश तक है। और समान दृष्टि की इंतहा कर दी है गुरु गोबिंद सिंह जी ने। भाई कन्हैया नूं पकड़ के लिया गया और सिख कहते महाराज साडे विच गद्दार है, असीं मार मार के गिरांदे हैं, पानी पिला के फिर खड़ा कर देंदा। साहब कहते ऐसा क्यों? कन्हैया कहता पातशाह समान दृष्टि वध गई, हर पासे तू ही दिखाई देना, और की आकाश का तक वध गया। साहिबा ने जेब चो मरम की डब्बी कढ़ी, आख्या पुरखा तू निरा पानी ना पिलाया कर, मरम पट्टी भी करिया। रैड क्रॉस के बानी नूं ते असीं दाद दई जांदे हां, पर उसका जिक्र नहीं करते। जिसने कहा सी मैदान जंग भी अगर कोई गिर जाए पानी पिला, मरम पट्टी कर, उसकी कोई गल नहीं करते, संसार में कोई गल नहीं की। खैर साहिब गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज मेरा वरतान 5 तत्तां दा जिहड़ा बनया साडा पुतला है, साडे कोल 5 तत्त होवन। ऐसा ना हो कि असीं ठंडे पै जाइए, अग ठंडी पै गई ना तो सब कुछ गया। मुर्दे नूं फिर घर विच कोई थां नहीं है, मुर्दे नूं कब्रिस्तान ले जाना पैंदा, शमशान घाट ले जाना पैंदा, साड़ना पैंदा, फूकना पैंदा। जिहदी अणख ही मर गई, जिहदी खुददारी मर गई, जो अंदरों ही मर गया, खिमा करनी फिर उहदे वास्ते कोई थां कोई नहीं। वो तो मुर्दा ही है, वो मरगर घाट विच, वो तो जीवदे ही मुर्दा है। एक जीवदे जागदे मनुखां वास्ते घर विच थां आउंदी है, जिन्हां दे अंदर अणख है संसार विच उन्हां वास्ते ही थां है, मुर्दा कौमां वास्ते नहीं, मुर्दा बंदियां वास्ते नहीं। मेरे पातशाह बख्शिश करन ये जोश आपकी झोली च पावन, ताकि जीवन का ढंग सानू आ जाए। बहुत सारा समा मैं थोड़ा लै गया, खिमा की याचना। और समूह प्रोग्राम जिहड़ा है वो सिकत्तर साहब ने तुहानू सरवण करा दिता है। एक हफ्ता मैं थोड़ी हाज़री भर के मैं इत्थों तो रुखसत लेनी है, तो टोरंटो कोई 2 हफ्ते ठहर के मैं वापस चले जाना है इंडिया। वो 8 तारीख मंडे तो 14 तारीख तक थोड़े चरण लगातार मैं इत्थे परसांगा। उस दौरान गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का प्रकाश उत्सव मनाया जाएगा। हिंदुस्तान में बड़े बड़े पद्धर से थां थां ते मनाया जाता है। कोशिश करांगा कि उन्होंने दिनों गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की कुछ महानता मैं थोड़े सामने सिलसिलावार लड़ीवार रख सका, क्योंकि जिस पातशाह का किसी पुरब मनाना है साहिब गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का, जो साडे मौजूदा गुरु ने और जो साडे मौजूदा रहबर ने और जुगो जुग अटल सानू प्रेरणा देने वाले ने, उन्हों का पुरब तुसी इतने वड्डे धूमधाम नाल मनाना है कि थानू ये बोध हो जाए हर एक नूं कि साडे मौजूदा गुरु गुरु ग्रंथ साहब ने और यही जुगो जुग अटल साडे रहबर ने बड़े उत्साह नाल इस पुरब नूं मनाना है और बड़ी श्रद्धा दे नाल इस पुरब नूं मनाना है। 8 तारीख फिर तुहाडे दर्शन करांगे। जिंदगी रही और सतगुरु ने बख्शिश की थी, फिर गुरमत दीयां गल्लां तुहाडे सामने रखांगे। समा कुछ ज्यादा हो गया, इस वास्ते मैं हाथ जोड़ के खिमा दा जा चुका। वाहिगुरू जी का खालसा।